Okay, very good morning. Let us continue with our chapter, that is heat. Our topic for today is convection. Bache, as we had done yesterday, the meaning of convection is transfer of heat with the actual movement of molecules, right? Is the actual movement of particles. This convection, this type of transfer, it generally takes place in liquids and gases, right? Hopefully it is clear to all. Just take one example. As I told you, students, I am calling the name of the students and they are coming to me and then they are taking their notebook back. This was convection. For that I gave you one example of potassium permanganate, जिसमें मैंने बताया वो किस तरह से वाटर पार्टिकल्स को हीट कर रहे हैं अपने अराउंड भी, राइट? सो स्टूडेंट्स, इसी तरह एक और, वो तो लिक्विड में हो गया, गैस में कैसे होता है? लिक्विड में मैंने बता दिया वो किस तरह से पार्टिकल्स को हीट करता है, गैस में कैसे होता है? इन द सेम वे, जहां पे रेडिएशन आ रही है, जहां पे हीट आ रही है, आसपास की गैस गर्म हो जाती है, एयर गर्म हो जाती है, एंड दिस हॉट एयर इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप. Yes, Kanav, write down the convection's definition. I guess I gave you yesterday the definition. We had done it yesterday. The process of transfer of heat in liquid or gas. The process of transfer of heat in liquid or gas by the actual movement of particles. By the actual movement of particles in liquid or gas. राइट? सो लिक्विड में आई टोल्ड यू किस तरह से हमने राउंड बॉटम फ्लास्क में पोटेशियम परमैंगनेट डाला, उसके आसपास के वाटर गर्म हुआ, दिस वाटर इट मूव्स, स्टार्ट मूविंग. रिमेंबर हमने ऐसे किया था कल. दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, इट वॉज फिल्ड विथ 3/4 of water. We add potassium permanganate here. Do you remember? Then it was burned, heat was given to it. तो हमने क्या करा, इसके आसपास वाला पहले गर्म हो गया वाटर, because on heating the molecules become more free to move, they start moving faster. तो ये मूव करना शुरू हो गए, राइट? दे स्टार्ट मूविंग. तो यहाँ पे जगह खाली हो गई, तो ये जो ऊपर कोल्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, दे स्टार्ट कमिंग डाउन, राइट? इवेंचुअली दे आल्सो गेट हीटेड अप. इस तरह से मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, एंड द होल वाटर विल गेट हीटेड, राइट? इज दिस क्लियर? सेम इन द सेम वे what happen in case of gases. ये लिक्विड में था, गैसेस में क्या होता है? सपोज फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग द हॉट एयर, यहां से हॉट एयर इतनी एयर पे आ रही है, यहां पे हीट आ रही है, दिस पार्ट गेट्स हीटेड अप, दिस पार्ट गेट्स हीटेड अप, दिस एयर गेट्स हीटेड अप, हॉट एयर rises up, right? Remember, hot air rises up. We had done in 3rd, 4th also. Then cool air, it rushes to take its place, right? Eventually it will also get heated up and it will also rise up. तो इस तरह ये करंट सा कन्वेक्शन करंट बन जाता है. It cause a convection current. इसकी एप्लीकेशन है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, यू रिमेंबर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में क्या होता है? सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, what happens? What happened during sea breeze and land breeze? Actually sea breeze और land breeze में convection current in nature,
नेचर में कैसे कन्वेक्शन करंट मूव करता है? इट जनरली हैपन्स इन कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज में ये होता है. व्हाट हैपन इज, व्हाट इज देयर इन कोस्टल एरियाज? दिस इज लैंड and this is sea. During the day what happen is, out of land and sea what gets heated up faster? Out of land and sea what gets heated up faster? Land gets heated up faster? No सुहाना, wrong. During the day soil और water में से पहले क्या heat up होगा? Land. Right? Land get heated up. The air above the land get heated. Now this air being hot, it rises up. Right? Now because it rises up, the cool air from the sea rushes to take its place. Right? Now again this will get heated up. And in this way convection current will be formed. Right? What is happening is, cool air from the sea, it is moving towards the land. Because land gets heated up first. Land पहले गर्म हो जाएगी. Is this clear? Land gets heated up first. Hot air rises above. And cool air from the sea rushes to take its place. So during the day, the people living near coastal areas, they do not feel much hot. This is known as sea breeze. इसको sea breeze बोलते हैं. Is this clear? You can see people living in coastal areas, they generally make the windows and doors of their houses facing the sea. Why? So that cool air from the sea rushes in and they do not get much heat during the day. Now what happened during the night? अब night पे क्या होता है? Same phenomena है. रात हो गई है. Land, sea. रिमेंबर, आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने 3rd 4th में कि लैंड गेट्स हीटेड अप फास्ट, लैंड गेट्स कूल्ड अप फास्ट. तो रात के समय जब सन नहीं है, लैंड गेट्स कूल्ड अप. नाउ सी इज वार्मर. द हॉट एयर अबव द सी इट राइजेस अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड इट रशेस टुवर्ड द सी टू टेक इट्स प्लेस. राइट? In this way, convection current is produced. This is known as land breeze. Clear? Is this clear? This happened due to convection current. Is this clear to all? इसके अलावा there are other applications of heat of convection also. Shall I erase this? Otherwise it is given in your book. Okay? Other applications. कन्वेक्शन की दूसरी एप्लीकेशंस क्या हैं बच्चे? वेंटिलेटर्स. फर्स्ट इज जो एरोज बताए हैं मैंने अभी इरेज कर दिया है हर्षिया. मैं दोबारा बता देती हूँ एरोज, प्लीज देखिए. सी ब्रीज के एरोज देखिए. आपको इसमें क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करना है. देयर इज लैंड, देयर इज सी. दिन का टाइम है तो सन निकाल लो. एक चीज आपको याद रखनी है, ऋषिता दोबारा बता रही हूं, लैंड और सी में से पहले गर्म लैंड होगी, मिट्टी पहले गर्म होगी. जो चीज पहले गर्म होगी उसके ऊपर एयर भी जल्दी गर्म हो जाएगी. सो द हॉट एयर फ्रॉम लैंड राइजेस अप. राइट नाउ यहाँ पे जगह खाली हो गई तो यहाँ पे जो ठंडी है हवा
वो इधर को आ जाएगी फटाफट, राइट। तो इस तरह ये वाली एयर गर्म होने के बाद इधर घूमेगी और ये सी के ऊपर आ जाएगी, ये कन्वेक्शन करंट बन गई, राइट। अब लैंड ब्रीज में क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द लैंड ब्रीज? सेम कंडीशन है हमारे पास, दिस इज लैंड, दिस इज सी। हियर इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट, राइट। व्हाट हैपन इज, during the night when sun is not there, out of land and sea, land will get cool up faster, sea is still hot excuse me, sea is still hot, land gets cooled up faster. So sea is hot, so air above the sea is hot, so this air being hotter, it rises up. Now the cooler air from land rushes in to take its place, and this will go here. In this way the convection current is produced during the land breeze. That is why during the day people living on land, they get cool air, and during the night when land is very hot, right, at night the hot air from the sea, they keep them warm, they do not feel much cold. Is this clear now, Rishita? Is it clear? Harshia, Rishita? Clear है? इसको erase कर दूं? Shall we move to other applications? इसकी दूसरी convection की application है बेटा ventilator. Ventilators. Just मैं फटाफट से आपको बताऊंगी ventilators हम कहाँ पे लगाते हैं. We place the ventilators on the wall at the top, ऊपर लगाते हैं हम, ठीक है। एग्जॉस्ट फैंस या वेंटिलेटर्स जो हैं हम ऊपर लगाते हैं at the top of the wall. Why so? Why? Because the air which we breathe out, it is warmer. Getting enough? The air which we breathe out, it is warmer. This warmer air, it rises up, right? It rises up. So we put the ventilators, we keep the ventilators at the top of the room so that this warmer air, it is passed out and the cold air, it comes in, it is circulated. Is this clear? Next application is chimney. इसी तरह चिमनी है, चिमनी देखिए क्या होती हैं, फैक्ट्रीज में जनरली लगी होती हैं टॉल चिमनीज, राइट। क्यों लगाई जाती हैं? टू रिमूव द हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज. दे आर ऑल्सो केप्ट हाई, राइट. Why they are kept high? Because these gases, this smoke, this is lighter than air. ये हवा से भी हल्की होती हैं, तो ये फटाफट ऊपर को जाती हैं, ठीक है. They rise up and they escape into the air. That is why chimneys are kept high. Is this clear? Next, third is room heaters. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप रूम हीटर्स कहाँ लगाते हो? छत पे, ऊपर, फटाफट बोलो, मैसेज करो. रूम हीटर्स कहाँ लगाते हो? इन रूम तो लगाते हो. इन रूम कहाँ? ऊपर लगाते हो, टॉप के बॉटम, ग्राउंड पे. बॉटम नीचे लगाते हैं हम, ग्राउंड लेवल पे रखते हैं. प्ले ग्राउंड नहीं, ग्राउंड लेवल पे. जैसे एसी हम ऊपर लगाते हैं, बट हीटर हम नीचे रखते हैं. वाई सो? क्या होता है, हीटर गर्म हवा देता है, उसके आसपास की हवा गर्म हो जाती है, राइट. हॉट एयर इट राइजेज अप, उसके बाद ऊपर से ठंडी हवा फिर नीचे आती है, वो भी गर्म हो जाती है. फिर क्या होता है, वो गर्म हवा फिर ऊपर चली जाती है, जो पहले ऊपर गई थी वो ठंडी हो गई, वो फिर नीचे आ जाती है. इस तरह कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है और सारा रूम, उसकी सारी एयर वार्म अप हो जाती है, राइट. इसलिए हम इसको नीचे लगाते हैं. इज दिस क्लियर?
और जो एसीज है वो हम ऊपर इंस्टॉल करते हैं। एसीज हम ऊपर इंस्टॉल करते हैं। इज दिस क्लियर? क्यों ऊपर इंस्टॉल करते हैं? जब हम ब्रीद आउट करते हैं, जो वार्म एयर है बीइंग लाइटर वो ऊपर को जाती है, ऊपर जाती है तो जो एसीज हैं उसको ठंडा कर देते हैं। एज अ रिजल्ट जितनी एयर ऊपर जाई जाएगी उतनी वो ठंडी होती जाएगी। क्लियर? ठंडी होके वो फिर नीचे आ जाएगी। इस तरह सारा रूम ठंडा हो जाता है। क्लियर? ऋषिता हीटर्स दोबारा समझा रही हूं, जस्ट पे अटेंशन। ये देखिए, ये हमारा रूम है, ये हम हैं और ये हमारा हीटर है। ठीक है? पारी नहीं हो रही है, सिर्फ हम हीटर के आगे बैठे हुए हैं। देयर इज नो पार्टी। ओके? अब क्या होता है, हमने हीटर यहाँ पे रखा है, हमने वॉल पे नहीं लगाया, ऊपर नहीं प्लेस किया हुआ। Why so? बिकॉज यहाँ से जो हॉट एयर प्रोड्यूस होगी, इस हॉट एयर से ये वाली जो एयर है, जो नीचे वाली एयर है, इट विल गेट वार्म अप इस हीट से। दिस हॉट एयर जब हॉट हो जाएगी इट विल राइज अप, ये ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर की ठंडी हवा है वो नीचे आ जाएगी टू फिल द स्पेस। इवेंचुअली इट विल ऑल्सो गेट वार्म अप, जब वार्म होगी ये फिर ऊपर आ जाएगी। इस तरह ये सारा कन्वेक्शन करंट बन गया और सारा रूम वार्म अप हो गया। राइट? अब हमने एसी जो है, एसी हमने ऊपर इंस्टॉल किया हुआ, वो नीचे इंस्टॉल नहीं किया। हमने एसी क्यों ऊपर इंस्टॉल किया है? व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ? यहाँ पे जो वार्म एयर है इट विल गो अप, it will get cooled due to AC, then it will come down, the room will get cooler again, ये वार्म अप हो गई, वार्म अप होके ये फिर ऊपर आएगी। in this way convection current is formed. is this clear? क्लियर हो गया कन्वेक्शन? अब थर्ड कैटेगरी आती है हमारी रेडिएशन। What is radiation? लिखिए, थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रेडिएशन। What is radiation? हाँ जी बेटा, देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, process of transfer of heat from hot body to cold body without affecting the medium, without affecting the medium. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई गेव यू वन एग्जाम्पल। सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, मुझे कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हाउ विल आई डू? रेडिएशन मेथड, थर्ड मेथड कौन सा था हमारा? मैंने नेम लिया भव्या, वो थ्रो करी मैंने, बीच में किसी बच्चे को कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, हर बच्चा अपनी सीट पे बैठा है। मुझे कॉपी भेजनी है कनव को, दिस आई थ्रो इट टू कनव, कनव के पास पहुंच गई। बीच में जितने भी बच्चे बैठे हैं दे आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको चीज चाहिए मैं सिर्फ उसी को दे रही हूँ। दिस मेथड इज नोन एज रेडिएशन। राइट? अब ये मेथड जो है इसकी एग्जाम्पल क्या है? वी गेट द हीट ऑफ द सन, वी गेट द हीट ऑफ सन बाय दिस मेथड। सन रेज जो आती हैं वो हमारे तक कैसे पहुंचती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। इज दिस क्लियर? अगमजोत सिंह, अभी आपकी क्लास नहीं शुरू हुई।
हाँ जी, चलिए अब रेडिएशन क्या है इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। उसने कहा है 2 बीकर ले लो, 2 कंटेनर ले लो, एक को आप सारा ब्लैक कर दो बाहर से, एक को लाइट कलर कर दो, A इज ब्लैक, B इज लाइट कलर, और इनको इनके अंदर पानी डाल दो। पानी डाल के इनके अंदर we have kept the water in it, then place a thermometer, laboratory thermometer, right? और इनको धूप में रख लो, ठीक है? What will you see? क्या होगा? आधा पौना घंटा रख दो। पहले जब आप देखोगे इनको धूप में रखने से पहले इनका टेम्परेचर सेम होगा, दोनों का सेम आया, ठीक है? अब आधे पौने घंटे बाद व्हाट यू विल सी, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है। द टेम्परेचर ऑफ द कैन विच इज पॉलिश्ड ब्लैक इज हैविंग मोर टेम्परेचर, दिस कैन is having low temperature. Why? Because dark color, black color, it will absorb more heat, right? And light color, it absorb less heat. Light color हमेशा heat को reflect करता है और dark color heat को absorb करता है। इसकी एक एग्जाम्पल है, हम छोटे होते पढ़ते आ रहे हैं, इन विंटर्स वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। व्हाई डू वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स? बिकॉज डार्क कलर एब्जॉर्ब हीट, जिससे कि हमें वार्मथ रहती है और हमें ठंड नहीं लगती। व्हाइल इन समर्स वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। व्हाई डू वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर? बिकॉज लाइट कलर इट रिफ्लेक्ट्स द हीट। आकृति, आप कहाँ घूम के आ रहे हो बेटा? Where were you? So in summers we wear light color clothes. Why? Because light color it reflect the heat, it does not absorb the heat, right? So that is why we prefer light color clothes in summer, because light color it reflects the heat, right? Is this clear? Is this clear? Let me know. एक और लाइन आप याद रखो, जब कोई रेडिएशंस किसी चीज पे पड़ती हैं, जब कोई भी रेडिएशंस किसी चीज पे पड़ती हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी या ट्रांसमिट हो जाएंगी, ट्रांसमिशन होगा उनमें, या तीनों ही होंगी। कुछ रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ एब्जॉर्ब होती हैं और कुछ जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं, राइट? ज्यादातर हम चलो ट्रांसमिट छोड़ देते हैं, वी विल यूज द वर्ड रिफ्लेक्ट एंड एब्जॉर्ब। सम रेज दे गेट रिफ्लेक्ट एंड सम गेट एब्जॉर्ब, राइट? तो क्या होता है, अब कितनी रेज, कौन सी रेज या कितनी रेज रिफ्लेक्ट होंगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, इट डिपेंड्स ऑन हरप्रीत। लीव इट नित्या, लीव इट नित्या, लीव ट्रांसमिट वर्ड। मैं बता रही हूं दोबारा, जब किसी चीज पे रेडिएशंस पड़ती हैं, कुछ रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, राइट? अब रिफ्लेक्ट ज्यादा होंगी या एब्जॉर्ब ज्यादा होंगी, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। वो दो चीजें कौन सी हैं? लिखो कंडीशंस, कंडीशंस, राइट डाउन conditions on which reflecting or
absorbing part depend? फर्स्ट कंडीशन है नेचर ऑफ सरफेस. सेकंड कंडीशन है कलर ऑफ ऑब्जेक्ट. राइट. अब मैंने कलर का तो आपको बता दिया. डार्क कलर्स दे एब्सॉर्ब मोर हीट एंड लाइट कलर्स दे रिफ्लेक्ट मोर हीट. राइट. अब रह गया नेचर ऑफ सरफेस. तो इसमें नेचर ऑफ सरफेस में क्या है? नेचर ऑफ सरफेस में क्या है? शाइनी स्मूथ सरफेसेस. अगर तो शाइनी और स्मूथ सरफेस है, शाइनी स्मूथ सरफेसेस आर बेटर रिफ्लेक्टर्स. तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, वो रिफ्लेक्ट करेंगे, एब्जॉर्प्शन कम होगी. बट ऑन द अदर हैंड इफ द surface is dull and rough, so the absorption will be there. Right? Is this clear to all? ये समझ में आ गया? इसी तरह आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल दी हुई है, अपनी एनसीईआरटी में देखो, पेज नंबर 44. Page number 44. Woolen clothes keep us warm in winter. This question is generally asked in exams. Why do you wear woolen clothes in winter? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे. मैंने उस दिन भी बताया था, वूल जो है इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ये हीट को अलाउ नहीं करता ट्रांसमिट करना. राइट. तो क्या होता है, वूल फाइबर्स के बीच में एयर एंड ट्रैप है. वूल फाइबर्स के बीच में एयर है. वूल पुअर कंडक्टर है, एयर भी पुअर कंडक्टर है. तो एज अ रिजल्ट जो बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं जा पाती. वूल उसको अलाउ नहीं करता कि वो बाहर जा पाए, इसलिए हम सर्दियों में गर्म रहते हैं. दैट इज वाई वी वियर वूलन क्लोथ्स. राइट. इज दिस क्लियर जशन? नैतिक, व्हाट आर यू डूइंग? जशन, इज दिस क्लियर? ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ. वूल इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर. एयर इज entrapped in wool fibers, so air is also a poor conductor, so they do not allow heat of the body to pass out. That is why our body remains warm. एक और जनरली दूसरी फॉर्म में क्वेश्चन आता है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर हम सर्दियों में एक रजाई लेते हैं या 2 पतले पतले कंबल लेते हैं, कौन हमें ज्यादा वार्मथ देगा? 2 blankets. Why? क्योंकि उसके बीच में एयर एंड ट्रैप है. दैट इज अ पुअर कंडक्टर. इट विल नॉट अलाउ हीट टू पास आउट ऑफ इट. राइट. दैट इज वाई वी फील वार्म. राइट. इज दिस क्लियर टू ऑल? विद दिस वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर. लेट अस स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज. 2-3 मिनट रहते हैं, फटाफट से बैक एक्सरसाइज कर लें. हाँ जी, हाँ जी, साची साइड पे हूँ. हरजीत कौर बोलिए. यस हरजीत, एनी डाउट? हाथ नीचे कर लिया बेटा. ओके, टाइपिंग द मैसेजेस. First question is very important. State similarities and differences between laboratory thermometer and clinical thermometer. State similarities and differences. Yes, Naitik, answer it. Type करो message. Okay, you are not typing. हाँ जी, नैतिक आंसर कर रहा था.
वेयर इज नैतिक? हरजीत कौर, यस बेटा. अभी तो हम सिमिलैरिटीज के बात कर रहे हैं. First, let us discuss about similarities. Yes, students, both consist of long, narrow, uniform glass tubes. Then both have bulb at one end. Both contain mercury. Both use cells. आप नहीं कर रहे हो हरप्रीत? Eating. This is not a break. Both contain mercury. Both use Celsius scale on a glass tube. दोबारा बोल रही हूँ similarities. Both consist of long, narrow, uniform glass tubes. Number 2, both have bulb at one end. Number 3, both contains mercury. Number 4, both use Celsius scale on glass tube. Differences? Yes, differences बोलिए. Kanav, speak out. -10 डिग्री टू है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. ठीक है कनव? कनव, इज इट ओके? माइनस लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, राइट? और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या है? रीड टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू कितने से कितने तक होती है इसकी रेंज क्लिनिकल थर्मोमीटर की? 42 डिग्री सेल्सियस, राइट? क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू measure body temperature. Laboratory thermometer is used to measure liquids, temperature of liquids in lab. Very good, Suhana. Clinical thermometers have kink so that mercury does not flow out. Laboratory thermometers do not have kink, right? Coming to next question. First question copy में करोगे. Second, give 2 examples each of conductors and insulators. फटाफट टाइप कर दो मैसेज, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स, फिर आज छुट्टी करें. हाँ जी, कंडक्टर्स 2 बताने हैं, एल्यूमिनियम एंड आयरन. इंसुलेटर्स प्लास्टिक एंड वुड. यस निश्चय, कॉपर इज ऑल्सो कंडक्टर. एयर इज इंसुलेटर, राइट? भव्य, वो क्या होता है? चलिए, बुवूल, ओके, राइट. ओके स्टूडेंट्स,